Okay. Okay. So let's see in the diagram. See, what we have is the position of the lighthouse. Now you see this triangle which is there. Let's call it triangle. Let's call the 1800 position as A. Let's call the 1845 position as B. Let's call the lighthouse as L. So you see beta, in this triangle, angle B is a 90-degree angle, because if a object is abeam of you, that means it will be at right angle to your fore and aft line, or right angle to the course steered. So angle A is 45 degrees. It is given to us in the question. That means angle L also will be 45. So this is a isosceles triangle. That means side BL will be equal to side AB. If two angles are equal, the sides opposite to them in the triangle are also equal. So now beta, can we find out what is the distance steamed by the ship from 1800 to 1845? Yes, sir. Okay, so how can we do that? We know the time, we know the speed. Very good, beta. We have 12 miles. Very good. So you see we have the speed of 16 knots. It is given from 1700 to 2000, speed is 16 knots. So with a speed of 16 knots from 1800 to 1845, the distance covered would be 12 miles. So if this side AB is 12, the side BL will also be 12. Right, beta? Up to here, everybody is okay? Yes. Right. Yes. Okay. Now, beta, you see, Size BL will be 12. side BL will be 12 miles, which is equal to AB. Okay. Now you see, at 1700, from 17 to 20, we are steering a course of 284. So our course on this leg is 284. Beta, if our course is 284, can you tell me what will be our beam bearing? What will be the bearing of the lighthouse? Sir, 016. Very good. It's very simple, beta. So you see, if you are steering 284, the lighthouse is on your beam. So that means the lighthouse is here. This is a 90-degree angle. So 284 plus 90. Okay. It will immediately give you your beam bearing. In this case, it will be 014. The answer will be 374. So, but the bearing cannot be greater than 360. So if you subtract 360, the bearing will be 014. So at point B, the bearing of the lighthouse is 014. Now from the lighthouse, what will be the bearing of the ship? From the lighthouse, what will be the bearing of the ship? 194. 194. Very good. It will be 194. 180 plus 014, 194. So let me write it here. The bearing of the lighthouse, the bearing of ship from the lighthouse is 194. Distance is 12 miles off. Okay. So ये हमें पता चल गया बेटा. ये हमें पता चल गया. तो अब हम क्या करेंगे बेटा? Now it is very easy for us. You see, you have the latitude and longitude of the lighthouse at point L. From point L, we will move up to the 14th noon position. So how can we move? From point L, the first course and distance would be 194 and 12 miles. You will reach at point B here. That is the 1845 position. Now from here to 2000, we know the course and distance, right? Course is 284 and the distance can be calculated with a speed of 16 knots from 1845 to 2000, 1 hour 15 20, minutes. 20.
वेरी गुड, डिस्टेंस कम्स आउट टू 20. तो ये हमारी सेकेंड लेग हो गई बेटा. थर्ड लेग वुड बी 262,120 and the fourth leg would be this one, that is 198 with a speed of 14.5. तो अगर हम ये चार लेग को 1, 2, 3, 4 इन 4 लेग्स को डिपार्चर और डिपार्चर एंड डीलैट निकाल के अपने लाइट हाउस की पोजीशन पे लगा देते हैं तो 14th नून का लेट लॉन्ग निकल जाएगा बेटा. So this is how we can find out the 14th known position. So अब बेटा ये चीज समझ में आई और इसमें कोई डाउट आ रहा है? Let me zoom in and show you. किसी भी पॉइंट पे अगर कहीं पे डाउट आ रहा है you can share with me बेटा. I'll try to make it सर easy. 1845 का पोजीशन पहले निकालेंगे ना लाइट हाउस से? बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, जैसे हम पिछली नून पोजीशन से नेक्स्ट नून पोजीशन निकाल लेते हैं, यू जस्ट कंसिडर पॉइंट बी एज ए वे पॉइंट. हम अब पिछली नून से शुरू नहीं कर रहे, हम अब लाइट हाउस से शुरू कर रहे हैं. तो 19412 को हमने कोर्स मान लिया, बी पॉइंट को अपना वे पॉइंट मान लिया और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेग को इंक्लूड कर लिया. ठीक है सर, ठीक क्योंकि है. ई की पोजीशन उन्होंने हमसे पूछी नहीं है. हाँ जी सर, तो हाँ जी. निकालने का सिर्फ ये डिसएडवांटेज है दैट वी विल बी स्पेंडिंग 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा. और फिर सर पीछे की लेग सॉल्व नहीं करेंगे सर हम 13th की नून? हाँ ओके, अब बेटा ये तो समझ में आ गया ना. अब अप टू हियर इज क्लियर? हाँ जी सर. ओके, अब बेटा पीछे की लेग पे मैं बताता हूँ आपको पीछे की लेग्स का क्या पर्पस है. देखो 14th नून की पोजीशन तो हमने निकाल ली. अब वो आगे हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड नोन टू नोन. सो हमें नोन टू नोन, कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड भी निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ? लेट मी शो यू. लेट्स पिक अप ग्रीन कलर. हमारी 13th नून पोजीशन से 14th नून पोजीशन का कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड, दिस वन. ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. अब ये हम कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए बेटा हमें ये पिछले वाले कोर्सेज को यूज करना पड़ेगा. तो वी विल यूज दिस फर्स्ट लेग, वी विल यूज द सेकेंड लेग, द थर्ड लेग एंड द फोर्थ लेग. ये चारों लेग के हम लोग कोर्सेज और डिस्टेंसेस से डिपार्चर डीलैट निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं टेबुलर फॉर्म में. हमारे पास रिजल्टेंट डीलैट और डिपार्चर आ जाएगा. उसी रिजल्टेंट डिपार्चर और डीलैट से हम ये कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड का पता कर लेंगे. तो दिस इज द पर्पस ऑफ द प्रीवियस. अभी सर 14th नून से 13th नून की तरफ जाएंगे ना उल्टा? नहीं बेटा, 13th नून हमें निकालने को नहीं बोला है उन्होंने. हमें 13 नून की पोजीशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स मेड गुड और डिस्टेंस मेड गुड ही चाहिए. ओके सर. एक बार फिर से बता दीजिए CMG और DMG कैसे निकालें? ओके बेटा, मैं अभी बताता हूँ. देखो आपके पास ये राइट साइड में चारों कोर्सेज और डिस्टेंसेस उन्होंने दे रखे हैं. हाँ सर. अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना जो फर्स्ट कोर्स है वो लिखूंगा, जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो लिखूंगा और इससे डीलैट निकल जाएगा मेरा बेटा. डीलैट का फॉर्मूला है डिस्टेंस कॉस कोर्स. हाँ जी सर. और डिपार्चर भी निकल जाएगा, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस साइन कोर्स. ठीक है सर. ये फर्स्ट लेग का आ गया. अब बेटा इसी तरह से सेकेंड लेग के लिए भी कोर्स और डिस्टेंस मुझे पता है, उसका भी डीलैट डिपार्चर आ जाएगा. थर्ड लेग का भी आ जाएगा और फोर्थ लेग का भी आ जाएगा. राइट. जब आपके पास ये चारों डीलैट और डिपार्चर आ गए, आप इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो जैसा हमने कल टेबल में निकाला था. ठीक है सर. जैसे ही ये रिजल्टेंट डीलैट और डिपार्चर आया
आप इजीली कोर्स और डिस्टेंस निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेंजेंट कोर्स इज इक्वल टू डिपार्चर अपॉन डी लैट। डिपार्चर आपके पास है, डी लैट आपके पास है, इसको फॉर्मूले में डाल दो, tan इनवर्स ले लो, जो कोर्स आपको मिलेगा दैट विल बी द कोर्स मेड गुड। ओके। एंड दूसरी चीज बेटा, जब कोर्स मेड गुड आपके पास आ गया तो डिस्टेंस भी इजीली निकाला जा सकता है। हम डी लैट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोर्स की वैल्यू डालेंगे। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी बेटा, यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी, आपको 13th नून की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। ओके, क्यों निकालनी पड़ेगी? देखो, जब आप डिस्टेंस निकालोगे ना तो आपको एमलैट निकालने के लिए सर, राइट, डी लैट वाला फॉर्मूला लगाना है। अब डी लैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कॉस कोर्स। कोर्स तो आपके पास आ गया, डिस्टेंस आपने निकालना है तो डी लैट की वैल्यू चाहिए। सो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जो ये डी लैट आपके पास है, इस डी लैट को 14th नून पोजीशन के लैटिट्यूड में अप्लाई कर दो। 14th नून के लैट में आपको 13th का लैटिट्यूड मिल जाएगा। So from there you can find out the distance. So is it clear now, beta? सर सिर्फ लैटिट्यूड ही निकालेंगे उसका 13 नून का? हाँ बेटा, लॉन्जिट्यूड की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं है हमें, तो लॉन्जिट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द 13th पोजीशन ऑल्सो, तो फिर हम लॉन्जिट्यूड भी निकाल देते। ठीक है सर। ओके, तो इज दिस क्लियर नाउ बेटा? आई होप दिस वाज द डाउट जो आप पूछ रहे थे कि लाइट हाउस की पोजीशन से फाइनल पोजीशन कैसे निकालनी है। सर वैसे अभी तक हमने जो डीआर निकाला है उसमें ऐसे ही करते थे, जो रिजल्टेंट डी लैट निकलता था और तो उसमें अप्लाई करके हम लोग 14th का जैसे डीआर निकालना है तो वो निकाल लेते थे। इसमें 14th का डीआर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर कोई स्टेप बोल रहा हूँ। बेटा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा नहीं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें 13th की पोजीशन नहीं दी है। नॉर्मल क्वेश्चंस में हमें स्टार्टिंग पोजीशन दी होती है, हम उस पे अपना डी लैट लगाते हैं, 14th की पोजीशन आ जाती है। इस क्वेश्चन में आप राइट साइड में देखो, 13th की पोजीशन उन्होंने नहीं दी है, इट इज नॉट गिवन। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द कैच। ओके बेटा, ये चीज समझे आप? हाँ जी सर, दी तो नहीं है। हाँ, सो अगर 13th की पोजीशन नहीं है तो फिर हम ये डी लैट तो आ जाएगा हमारे पास, पर ये डी लैट लगाएंगे कहाँ बेटा? सर उसीलिए वही पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था वो। अब मुझे तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा कि इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि अब सर ये 14th का डीआर निकालूंगा कैसे मैं? जैसे की क्वेश्चंस में तो बस खाली यही रहता था कि 13th का दिया होता था, उसमें डी लैट लगा के डी लैट निकाल लिया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो हमने लास्ट में किया था बेटा। हाँ, ये चीज समझ में आ गई। ये जो किया, ये तो हमने अभी किया। और सर ये जो आपने ऊपर जो बताया था लाइट हाउस से जो पोजीशन निकालना, वो भी समझ में आ गया। हाँ, तो फिर बेटा डाउट कहाँ है? लाइट हाउस से फाइनल पोजीशन निकालना आ गया ना? हाँ जी सर। हाँ, देन तो फिर डाउट ही नहीं है कहीं। फिर बता डाउट कहाँ है बेटा? हाँ सर, समझ गया समझ गया सर। हाँ, और फिर ऐसे मत बोलना कि समझ गया, बिकॉज मैंने बोल दिया है। यू सी, अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो बेटा, बट अगर डाउट ही नहीं है माइंड में, हमें पता ही नहीं डाउट कहाँ पे है, फिर तो सारा सवाल ही दोबारा समझाना पड़ेगा ना। नहीं सर, हो गया, उसी में कॉम्प्लिकेट हो गया था। बोलो बेटा, बोलो, और क्या डाउट है? सर ये एक बार ये जो बीएल में आपका कोर्स डाला 194 और 12, वो समझ नहीं आया, वो कैसे आया? ओके, नाउ हाँ, दिस इज ए प्रॉपर डाउट।
कि सर ये 194 और 12 ये कैसे आया है, ये बताइए। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मैं बेटा अब बाकी की सारी चीज इरेज कर रहा हूं और ये 194 12 मैं आपको समझाता हूं। तो लेट्स इरेज एवरीथिंग एल्स। ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं। आई विल मेक इट अगेन। ओके बेटा, तो अब हम ये राइट साइड में क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसमें ये हमें बोल रहे हैं कि 1800 पे ये एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस की पोजीशन दे रखी है 4828 6705। इट बोर्ड 4 पॉइंट्स ऑन द स्टारबोर्ड बाव। ओके, सो मैंने इस चीज को यहाँ डायग्राम में डाल दिया। देखो ये 1800 की पोजीशन बनाई पॉइंट ए पे, ये लाइट हाउस बनाया और 4 पॉइंट्स का मतलब होता है 45 डिग्री। ये मैंने 45 डिग्री बना दिया। अच्छा, अब इसके बाद एट 1845 द लाइट वाज अबीम। अबीम का मतलब है कि जो कोर्स मैं स्टीयर कर रहा हूं उसके बीम पे, मेरा शिप अगर ऐसे है, दिस इज हाउ माई शिप इज, तो मेरे शिप के बीम पे ये लाइट हाउस आ गया। और बीम पे आने का मतलब है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। लेट्स कॉल दिस एज पॉइंट बी। और लाइट हाउस को हम लोग पॉइंट नाम दे देते हैं एल। अब बताओ बेटा, ये जो ए बी एल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल तुम्हें समझ में आ गई? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। वेरी गुड। अब बेटा ये देखो, अगर एंगल बी 90 है, एंगल ए 45 है, तो एंगल एल कितना होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 सर, 45 होगा। वेरी गुड, तो हमें पता चल गया कि ये एंगल 45 है। अब बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो तो उनके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो भी सेम होती है। इट इज ए प्रिंसिपल इन ज्योमेट्री। करेक्ट सर। तो इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो है बी एल और ए बी। इसका मतलब बी एल और ए बी सेम होंगी। यस सर। ओके, अब ए पोजीशन हमें अटेन हुई थी 1800 पे, बी पोजीशन पे शिप पहुंचा था 1845 पे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 1800 टू 1845 हमारी स्पीड है 16 नॉट्स। कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। ये डिस्टेंस कवर्ड होगा बेटा 12 माइल। ओके, 16 नॉट की स्पीड से 45 मिनट में आप 12 माइल डिस्टेंस कवर करोगे। अगर ये 12 माइल है तो बताओ एल बी कितना हुआ? 12। एल बी भी 12 माइल होगा, तो डिस्टेंस तो पता चल गया हमें। अब बेटा हमारा शिप जो है ये स्टीयर कर रहा है 284। ओके, हमारी हेडिंग क्या है? 284 है। अगर आपकी हेडिंग 284 है, सिर्फ आपका 284 हेड कर रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन है 284, आपके बीम पे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट की बियरिंग क्या होगी? 90, 284 प्लस 90 कर देंगे। वेरी गुड, 284 प्लस 90। जब आप 284 90 करोगे तो आंसर आएगा 374। आ गया बेटा? यस सर। आप बियरिंग 360 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसमें से 360 माइनस करो। यस सर। ओके, तो लाइट हाउस की बियरिंग क्या होगी बेटा? 14। 014 लाइट हाउस की बियरिंग आ गई। अब अगर आप लाइट हाउस पे खड़े होकर शिप को देखोगे तो शिप की बियरिंग कितनी आएगी? 14 प्लस 180। वेरी गुड, कितना आंसर आ गया?
194। वेरी गुड बेटा। तो 194 की बियरिंग है, शिप की बियरिंग फ्रॉम द लाइट हाउस और 12 माइल्स की रेंज है। दिस इज हाउ वी गॉट दिस फिगर। ओके। ओके, और बेटा किसी को और कोई डाउट है? सर इस क्वेश्चन के आंसर्स बता दीजिए सर, हम लोग ट्राई करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? क्वेश्चन यस सर। शेयर विद यू। इफ यू वांट आई Yes. कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसका आंसर भी डाल देता हूं बेटा और ये क्वेश्चन भी डाल देता हूं। सो इनफैक्ट यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। ओके, ये देखो बेटा पेपर। सो यू कैन सी दिस पेपर नाउ ऑन योर स्क्रीन। मैंने अभी पार्ट भी ओपन किया है। यस सर, यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स ए डेज वर्क प्रॉब्लम। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जो हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं। इट हैज कम yesterday in MMD एग्जाम। तो courses and distances teamed by the ship are given। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है अभी। फर्स्ट यू प्रैक्टिस दैट वन, द वन विच वी आर डूइंग। लाइट हाउस वाला जो क्वेश्चन है उसे कर लो। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आपने ये वाला प्रैक्टिस करना है। ओके, इसका आंसर वंस यू सॉल्व इट, तो बेटा इसका आंसर नहीं है मेरे पास अभी। so once you solve it, just share your answer on the group so that everybody else can also match। so ये exactly जैसा हमने किया है वैसा क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हम कर चुके हैं। कैलकुलेट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन। सो ये क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है बेटा वीकेंड के लिए। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके भी आपने इसका आंसर ग्रुप पे शेयर करना है सो दैट एवरीबडी एल्स कैन मैच। 5 और 6 ये दोनों हम कर चुके हैं। और अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, फॉर पोर्ट ऑफ एंटवर्प 9th मार्च डिटरमाइन द हाइट ऑफ टाइड। ये वाला क्वेश्चन है हमारा अगला टॉपिक। So this is what we are going to do।